بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل میں بند نہ ہو سکا۔ آگرہ تاج، بہار کالونی، بھیم پورہ، اول سٹی ایریا، کیماڑی، کورنگی، اورنگی، لانڈھی، سہراب گوٹ اور سرجانی ٹاؤن سمیت مختلف علاقے گھنٹوں بجلی اور گیس کی بندش سے متاثر رہنے لگے ہیں۔ شہریوں نے گیس اور بجلی کی بلا فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ ہے۔ شہر قائد کے باسی دور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لیاری، یوسف گوڈ، عثمان آباد، پاک کالونی، شیر شاہ، سرجانی ٹاؤن سائٹ، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، تیسر ٹاؤن، گڈاف ٹاؤن، شاہ لطیف، سچل، چکرا گوڈ، نصرت بھٹو کالونی سمیت مختلف علاقے گیس بندش سے متاثر۔ شہری کہتے ہیں پورا دن گیس غائب رہتی ہے۔ مہنگائی کے دور میں باہر سے کھانا منگوانے اور مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سر کھانا جلدی جلدی بنانا پڑتا ہے اور گیس کا جو نا رات کو 11:30 بجے گیس چلی جاتی ہے بالکل، پھر کھانا جو ہے نا وہ جلدی بنانا پڑتا ہے ہم کو۔ کل کے لیے بھی کھانا جو ہے نا وہ کل ہم جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، دن میں بھی چلی جاتی ہے کبھی کبھی گیس۔ ہاں باہر سے کھانا لاتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتا کبھی لے آتے ہیں، یہی کرتے ہیں اور کیا کریں گے۔ گیس بہت کم آتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی آگ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھیم پورہ میں لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے سے بڑھ کر 11 گھنٹے تک ہونے لگی۔ آگرہ تاج، بہار کالونی، بھیم پورہ، اولڈ سٹی ایریا، کیماڑی، اورنگی، کورنگی، لانڈی، سہراب گوٹ، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نارتھ کراچی، گارڈن، لیاقت آباد، قائد آباد، FB ایریا، محمود آباد اور ملیر میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہے۔ شہری بولے ایک طرف گیس غائب ہے تو دوسری طرف شدید گرمی میں بجلی کی آگ مچولی نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ بل 14,000 15,000 کا بل آ رہا ہے۔ 500 600 800 روپے کمانے والا بندہ دودھ لے کے آئے گا کیا بجلی کا بل بھرے گا؟ کیا کرے گا بندہ؟ کیا بچوں کو دیکھے گا؟ 3 بجے دوبارہ چلی جائے گی، 2 بجے پھر آئے گی، 5 بجے 5:30 بجے۔ بل ان کے اتنے آتے ہیں بے انتہا بلوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جائے۔ ون سٹی 21۔ سیاست کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ضمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ کہتے ہیں صاف و شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں۔ 5 نومبر کو جیت صرف تیر کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جلد کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنائے گی۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، بات چیت کی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ بالکل، کراچی کے 4 اضلاع میں 5 نومبر کو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے بھی 3 UC سے اس ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر مرتضی وہاب، ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے سر یہ بتائیے گا کہ MKM کی جانب سے اس انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، جماعت اسلامی جو ہے میدان میں ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان جماعتوں سے آپ کا مقابلہ ہے؟ دیکھیں مقابلہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شہر کراچی کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو اب تنقید کی سیاست نہیں چاہیے، ان کو تعمیر و ترقی کی سیاست چاہیے، جس کا حل ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ جو تقویت ہمیں 15 جنوری کے انتخابات میں ملی، جس کی بیسس کے اوپر کراچی شہر میں پہلی بار ایک جیالہ میئر آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروسیس کنٹینیو کرے گا انشاءاللہ اور 5 نومبر کو جیت تیر کی ہوگی۔ سر یہ بتائیے گا جب انتخابات اس طرح کے ہوتے ہیں تو امیدوار کو اپنے عہدے سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے، تو کیا میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب بھی اپنے عہدے سے دستبردار ہوں گے؟ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے قانون بڑا واضح ہے، قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو شخص کونسل کا ممبر نہیں ہے وہ میئر بننے کے بعد 6 مہینے میں اس کو الیکٹ ہونا ہے اپنے آپ کو، تو اس قانون کے بیسس کے اوپر ہم الیکشن کے مرحلے میں شامل ہیں۔ گو کہ میں الیکٹ ہو چکا ہوں آلریڈی۔ 15 جون کو کونسل کی میجورٹی نے ڈپٹی میئر صاحب کو اور مجھے ووٹ دیا تھا، لیکن ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہم UC سے بھی الیکٹ ہوں، تو دوسری ریکوائرمنٹ کو قانون کے مطابق پورا کرنے جا رہے ہیں اور ہم صاف شفاف انتخابات میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 5 نومبر کو فیئر بیلنسڈ انتخابات ہوں گے اور جو علاقے کی عوام ہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی حق رائے دہی کو استعمال کر سکے۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور جب تک یہ اس منصب پر موجود خدمت کرتے رہیں گے۔ جی انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی نے جامعہ ڈیجیٹل پورٹل شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین پروفیسر نسیم احمد میمن کا کہنا تھا کہ نئے پورٹل سے طلبہ اور ان کے کالجوں کو بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ ہے۔
आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तलबा के लिए चेयरमैन इंटर बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल लाने के लिए सरगर्म हो गए। प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन ने डिजिटल पोर्टल से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात बता दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड कहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल इम्तिहान और नताइज की इशात के पूरे अमल को शफाफ बनाएगा, बशमूल दरखास्त फॉर्म जमा करना। मुस्तकबिल के हवाले से इस इकदाम में तमाम ज़रूरी फॉर्म्स और तरीक़ेकार तलबा को उनके मुतल्लिका कॉलेजों के ज़रिए दस्तयाब कराए जाएंगे, जिससे बोर्ड के दफ्तर में जिस्मानी तौर पर आने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने वाज़ेह किया कि वो पोर्टल के साथ साथ ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम भी जल्द मुतारिफ कराएंगे, जिसका डिज़ाइन भी मुकम्मल हो चुका है। प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन ने बताया कि तलबा नए पोर्टल में लॉग इन भी कर सकते हैं और अपनी इसनाद वसूल कर सकते हैं। ये तमाम रसाई कॉलेजेस के प्रिंसिपल के पास भी मौजूद होगी। नए पोर्टल के बाद तलबा अपने इम्तिहानी फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकेंगे, जबकि तस्दीकी स्लिप्स बराह रास्त उनके कॉलेजों को भेजी जाएगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने बताया कि इम्तिहानी नताइज की इशात भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही मुंतकिल हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉलेज के मुंतज़मीन को सिर्फ एक क्लिक के साथ तलबा की तमाम मालूमात तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। और शहर कायद में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद ना हो सका। फल और सब्जियों की खरीदारी आवाम के लिए मुश्किल हो गई। लहसुन, अदरक, प्याज की कीमतों में इजाफा हो गया, जबकि सेब, अंगूर समेत दीगर फलों के दाम भी कम ना हो सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में मुनाफाखोर आपे से बाहर। कमिश्नर कराची सरकारी नरखों पर अमल करवाने में नाकाम। शहरियों के लिए सब्जियां और फल खरीदना मुश्किल। लहसुन 480 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदरक 1120 रुपए किलो में बिकने लगी। प्याज 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। आलू 20 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए फी किलो के हो गए। भिंडी 160 रुपए फी किलो से बढ़कर 200 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। ताहम हरी मिर्चें 200 रुपए और शिमला मिर्च 240 रुपए पर मुस्तहकम है। फ्रूट भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सेब 200 से 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। केला 160 रुपए दर्जन, अमरूद 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। 160, अनार 260 और अंगूर 320 रुपए में बिकने लगा। अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में शहर कायद की तरक्याती स्कीमों पर अहम बातचीत हुई है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा, अहम मुलाकात हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। मेयर कराची पहुंचे हैं गवर्नर हाउस और उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से एक अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात खुसूसी तौर पर कराची की तरक्याती स्कीमों के हवाले से थी और इस मुलाकात में जो मुशीर अमेरिकन तशरीफ थे शाहिद खान थे। इस मौके पे कुछ साइलिन से भी मुलाकात करवाई गई मेयर की, जिन्होंने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तालिबा ने जो गवर्नर से फीस माफ़ करने का मुतालबा किया था, गवर्नर सिंध ने उनकी दरख्वास्तें पे मेयर के हवाले की। इस मुलाकात में मेयर कराची का ये कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स का ये मुश्तरका मसला है कि कराची शहर के जो मामलात हैं, जिसमें तरक्याती स्कीमें, सड़कों का मसला है, पार्कों का मसला है या दीगर जो फलाह बहबूद के काम है, उसमें गवर्नर सिंध के ताउन की भी ज़रूरत होती है और गवर्नर सिंध के ताउन से ही हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। तो गवर्नर ने यकीन दिलाया है कि वो कराची की तरक्याती स्कीमों के हवाले से हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं और मिलकर जो है कराची के मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। मिलके कराची के मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। आजिज जमाली हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि स्मगल शुदा अशिया की खुलेआम फ़रोख्त पर तशवीश का इजहार किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इम्पोर्ट का लीगल काम 95% बंद हो गया है। इम्पोर्ट के मुकाबले में स्मगल शुदा अशिया ख़रीदार को सस्ती पड़ती हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखें, हुकूमत तो एक जानिब दावा करती है कि स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो ट्रेडर्स हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उनको इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात है। ख़ास तौर पर अगर बात कर लिया कन्फेक्शनरी के शोबे से वाबस्ता अफराद की, जो इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब चूँकि गैर कानूनी स्मगलिंग की वजह से उनका कारोबार मुतासर हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन है ट्रेडर्स एसोसिएशन मैजिस्ट्रेट अहमद शमसी, उनसे बात करते हैं। स्मगलिंग जो है उसमें ज़्यादातर जो है कन्फेक्शनरी ईरान से आ रही है
اور اس کے علاوہ جو یورپین چاکلیٹس وغیرہ دوسری وہ بھی اسمگل ہو کے آ رہی ہیں افغان ٹرانزٹ کے ذریعے. تو جب کاسٹ آپ کی اتنی زیادہ ہو جائے گی امپورٹ میں کہ آپ اس کو بیئر نہیں کر سکیں گے تو یقیناً پھر اور اسمگلنگ کو آپ نہیں روکیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسمگلرز کا اور اسمگلنگ کے مال کا. لہٰذا امپورٹ جو ہے لوگوں نے بند کر دی ہے. امپورٹ میں بہت شدید مشکلات ہیں. اسٹیٹ بینک کے رولز ریگولیشن کرنسی وہ نہیں ملتے, ڈالر نہیں ملتے, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا سمجھے فارن ایکسچینج کا بھی ضیاع ہو رہا ہے. پھر ایک سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری جو آپ کی چل رہی تھی, کچھ بڑی انڈسٹری تو ابھی تک چل رہی ہے کنفیکشنری کی, لیکن چھوٹی جتنی انڈسٹریز تھی وہ سب بند ہو گئی ہے. وہ اتنی زیادہ ان کی کاسٹ بڑھ گئی ہے کہ وہ اسمگل شدہ جو ایرانی کنفیکشنری خاص طور پہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جتنی پر کلو ڈیوٹی ہے اس وقت چائنا کی کنفیکشنری پہ بھی, چاکلیٹ پہ تو بہت زیادہ ہے, میں جنرل دوسری کنفیکشنری کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں اس سے سستی جو ہے فنش پروڈکٹ ایران کی یہاں مارکیٹوں میں دستیاب ہے. تو آپ خود بتائیے کہ کیسے پاسبل ہے کہ میں تو ڈیوٹی دوں, مثال کے طور پہ 300 روپے کلو ٹافی منگاؤں اگر ایران چائنا سے, اور یہاں پہ 250 روپے کلو جو ہے وہ فنش پروڈکٹ ایرانی دستیاب ہے مارکیٹ میں. تو یہ کاروبار سارا جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے, لوکل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. لیکن ارباب اختیار جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. اب باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کر لیں تو یقیناً ملک کی انڈسٹری کے حالات بھی بہتر ہوں گے, بے روزگاری بھی کم ہوگی. بالکل دیکھیں کنفیکشنری کے جو امپورٹرز ہیں وہ اس سلسلے میں کافی پریشان ہیں اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی اسمگلنگ ہے اس کو روکا جائے, کیونکہ غیر قانونی اسمگلنگ کی وجہ سے جو لوکل سطح پر انڈسٹری ہے وہ انتہائی سروائیو کر رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 5% سے امپورٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. بلدیہ کمہاڑواڑہ میں پانی کی قلت مکینوں کے لیے امتحان بن گئی. علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. مکینوں کا کہنا ہے بلدیہ میں پانی نایاب ہو چکا ہے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ, آگاہ کیجیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے وہاں کے مکینوں کو؟ جی بالکل, میں اس وقت بلدیہ ٹاؤن کمہاڑواڑہ میں موجود ہوں جہاں کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. یہ کہنا کسی بھی طرح غلط نہیں کہ یہاں پر پانی نایاب ہو چکا ہے. آپ میرے رقم میں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں موجود ہیں. بچے ہوں, خواتین ہوں یا مرد ہو, ہر ایک یہاں پر گھر سے نکلا ہے اور صرف اپنی دہائی سنا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے 3 سے 4 ماہ تک جو ہے وہ پانی نہیں آتا. 3 سے 4 ماہ میں صرف 1 گھنٹے پانی آتا ہے جو کہ گندا آتا ہے. ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں. سب سے پہلے ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ گزارا کر رہی ہیں, کس طرح پکاتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں. کیا کریں, مجبوری ہے نا ہماری. پانی لے لیتی ہوں 100 کا 200 کا روز کا, وہ پانی ہم استعمال کرتی ہوں. استعمال کرتی ہے تو کس طرح مینج کرتی ہیں؟ گرمی ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, نہانا ہے, کھانا پکانا ہے, تو کیا کریں, مجبوری کر سکتی ہوں. روزانہ 200 کا پانی خریدتے؟ نہیں, ایک دن چھوڑ کے 200 کا پانی آتا ہے. آپ یہ بتائیے گا آپ کس طرح مینج کر رہی ہیں؟ ہم لوگ پانی لیتے ہیں, سال میں 4 دفعہ پانی آتا ہے اور پانی لیتے. گیس نہیں ہوتی ہے, بجلی نہیں ہے, ہم لوگ بہت تنگ ہوتے ہیں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ جب مرد حضرات کس طرح سے مینج کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ 4 ماہ میں صرف 1 دفعہ پانی آتا ہے, وہ بھی 1 گھنٹے. سب سے پہلے تو 24 نیوز کا شکریہ جو آیا ہماری آواز بنے. یہاں پانی کا بھی ایشو ہے. پانی کا تو بہت بڑا ایشو ہے کہ 4 مہینے بعد پانی آتا ہے, وہ بھی 1 گھنٹہ آتا ہے, اور وہ بھی گٹر کا پانی آتا ہے. تو ایک تو یہاں جو ٹینکر ہے وہ ہمیں پہلے مل رہے تھے 2800-2700 میں. جب سے یہ آپریشن چالو ہوا, لائنیں کٹی ہیں, ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے کہ غیر قانونی کنیکشن کاٹے گئے ہیں, مگر یہ ہے کہ عوام کے لیے وہ بھی مہنگے ہو گئے. اب وہ 3500-4000 میں ملتا ہے, وہ بھی پانی ہمیں صحیح نہیں ملتا, وہ بھی مکس پانی ملتا ہے. تو لہٰذا ہماری تو گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمارے ان مسائل کو حل کیا جائے. یہاں غریب لوگ ہیں, ایک تو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, جب دل چاہ بجلی چلی جاتی ہے 4-4 5-5 گھنٹے, کوئی سنوائی نہیں ہے. اور گیس کا ایشو ایسا ہے کہ یہاں کئی گلیوں میں گیس ہی نہیں ہے, اور جو گیس بھی آ رہا ہے اس کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمارا 24 چینل نیوز کے توسط سے گزارش ہے کہ ہمارے ان مسائل کو ترجیح بنیادوں پہ حل کیا جائے. یہاں غریب اور متوسط طبقہ رہتا ہے جن کی تنخواہیں 15 سے 20 ہزار روپے ہیں, اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے ہیں, اوپر سے گیس بھی نہیں, اوپر سے پانی لینا بڑا مشکل ہے. شکریہ آپ کا. تو
बुनियादी सहूलियात से शहरी जो है वो यहाँ पर महरूम हैं। जब हम शहर से यहाँ पर आते हैं तो कुम्हारवाड़ा जो है वो सबसे पहला इलाका यहाँ पर लगता है जो पानी या बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो यहाँ UC7 पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बताइएगा सर, आपकी तरफ से क्या अब तक जो है वो काम किया गया या क्या कोशिश की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 24 चैनल को मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ इस कुम्हारवाड़े में कि आप लोग आज आए और हमारी आवाज़ को अक़वाम बाला तक पहुँचाने के लिए इन कोशिशों में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पानी का मसाइल है। वैसे तो मैडम पानी के यहाँ कर मसाइल जो हैं वो तीनों मसाइल हैं, पानी, बिजली और गैस। सबसे पहले मैं पानी पर आना चाहता हूँ कि पानी के जो मसाइल हैं वो यहाँ हमारी एक हेडिंग है जो कि 57 से 58 इलाकों को पानी सप्लाई दे रही है इस पूरे बल्दिया में। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त जो है हमारा जो पानी है 36 आवर्स मंथली बनता है जो कि हमें मिलना चाहिए। नाज़माबाद सी पम्प से ये पानी हमें प्रोवाइड किया जाता है हमारी हेडिंग को, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज सालों से हमें जो है वो 18 घंटे पानी दिया जा रहा है जो कि हाफ है। और वो 18 घंटे पानी मिलने की वजह से ये है कि हमारे इलाकों में जो है एक तो टाइम लिमिट बढ़ चुकी है, 2.5 से 3 महीने पर हम चले गए, और उसके अलावा जो मेन लाइनें हैं वो इतनी खस्ता हाल हो चुकी हैं कि मैं आपको बताता चलूं कि अभी पिछले दिनों तकरीबन 5 महीने से हमारी मेन लाइन जो सप्लाई है हेडिंग से जो आ रही थी पानी, वो इस वक्त जो है 5 महीने से वो ब्रेकिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये इलाके के लोग बड़े परेशान थे। हमने काफ़ी हद तक इस पर जो है वर्क किया और एप्लीकेशनें दी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वाटर बोर्ड के इमदाद मक्सी साहब का, जिन्होंने काफ़ी हद तक हमारी सपोर्ट की और कल वो काम शुरू हो चुका है। ठीक है, अब कहने का मकसद ये मैडम कि अगर हमें सी पम्प से 36 घंटे पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बल्दिया टाउन को, तो ये मसाइल पैदा इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। इस वक्त जो है 18 घंटे पानी की वजह से 2.5 से 3 महीने में हमें पानी यहाँ मिल रहा है लोगों को। सेकेंडली हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है इस पूरे कुम्हारवाड़े की कि यहाँ पर 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, जो कि दिन में 7 से 8 घंटे जो है 24 घंटों में हमारी यहाँ लोड शेडिंग चल रही है। तीसरी जो थर्ड मेन पोजीशन है जिसमें हमारी माएँ बहनें जो है बहुत ज़्यादा परेशान है वो है गैस का मामला, क्योंकि हमारे आधे इलाके को यहाँ गैस जो है सहूलत मुयसर नहीं आ रही, क्योंकि पुरानी लाइनें थी 30-40 साल पहले की जो मेन लाइनें यहाँ पर वो काम कर रही थी, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अब लोगों के घरों में गैस की जगह पानी आता है, जो कि ये लोग जो है रोज़ सुबह उठ के वो मीटरों को खोलते हैं और उसके बाद वो पानी निकालते हैं और फिर जो है कुछ गैस का वो जो है मामला। अच्छा सर, ये बात बताइएगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि टैंकर खरीदते हैं, तो टैंकर कितने लोग मिलकर खरीदते हैं और कितने टैंकर जो है वो यहाँ इलाके में आते हैं? ये ऐसा है मैडम कि कुछ लोगों ने यहाँ अपने टैंकों में जो है वो मेन टैंक डलवा लेते हैं पानी का टैंकर, और उसके बाद यहाँ लोगों को सप्लाई देते हैं। गदा गाड़ियों में लोगों को सप्लाई दी जाती है, जो कि गदा गाड़ी भी जो है जिसमें 600 लीटर पानी होता है, 500 से 600 लीटर, और वो जो है 600 रुपए की यहाँ दी जाती है फी घर। उसके अलावा कुछ जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो बेचारे कैन खरीद के लाते हैं। मेरे ख्याल में 25 रुपए का 40 रुपए का इनको जो है एक कैन दिया जाता है, जिस पे वो ला के अपने घर पे, जैसे आपको अभी एक अम्मा ने बताया कि वो 100-200 रुपए का पानी खरीदती है, तो ये पानी खरीद कर ही यहाँ पर जो है गुजर बसर हो रही है। तो बराए मेहरबानी इस पर मैं आपके तवस्सुल से या अक़वाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे जैसे MNA कादिर खान मंदुखैल साहब हैं, हमारे पार्टी के सदर लियाकत आस्कानी साहब हैं, तो मैं मोदबाना रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी हमारे कुम्हारवाड़ा की जो है ये मसाइल को हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो पानी आता है, टैंकर्स खरीदे जाते हैं, तो इसमें किसी भी तरह से गुजारा पूरा तो नहीं होता? बहुत बहुत शुक्रिया जी 24 न्यूज़ का कि आप हमारी आवाज़ बने और यहाँ तशरीफ़ लाए। असल में मसला ये है, पानी में गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। बाज़ घर तो ऐसे हैं जो चंदा करके जो है ना 2-2, 3-3 घर मिल के वो एक टैंकर डलवाते हैं और फिर उससे भी गुजारा करते हैं। जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं वो गदागड़ी डलवाते हैं, यानी कि एवरेज तकरीबन 200 से 300 रुपए का रोज़ पानी खरीदना पड़ता है। अब गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, गरीब लोग हैं जो बेचारे जो है ना अपने बच्चों को पालें या पानी भरें या बच्चों की फ़ीस जमा करवाएँ। सारे के सारे निज़ाम का इस वक्त जो है ना इस इलाके का धर्म भरम है। बिजली के मामलात हैं, गैस के मामलात हैं, पानी के। ख़ुसूसी तौर पर ज़ुबैर भाई ने जितना तफसीली गुफ्तगू कर ली है कि हमारा मेन मसला असल में पानी का है। पानी पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। अब लोगों की जो तनख्वाहें हैं आधी पानी में चली जाती हैं, आधी बिजली के बिल में चली जाती है। अब क्या करें, करप्शन इसीलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों के पास जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक करप्शन बढ़ेंगे, मार दाड़ होगी, लोग चोरी डकैती किया करेंगे। इसलिए जो है ना अक़वाम बाला से गुजारिश यही है कि बराए मेहरबानी
जो मेन जो 3-4 काम है इनको हल कर दिया जाए, बाकी मामला तो लोग फिर देखते रहेंगे अपने तौर पर जो भी कर लेंगे। बिल्कुल यकीनन आपने सुना कि आधी तनख्वाहें जो हैं वो पानी में चली जाती हैं, और भी इलाका मकीन हैं जो बात करना चाहते हैं इनसे जानेंगे। जी सर बताएं किस तरह मैनेज करते हैं? जी पानी तो ऐसा है कि बड़ा मुश्किल से जो है नहीं इधर आता है। अच्छा दूसरा ये है कि हम लोगों के पास तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, पैसे वाले भी नहीं है कि चलो हम लोगों ने चलो टंकी करा ली है वो करा लिए। हम लोग तो यहाँ से लेके लयारी तक पानी गदा गाड़ी से भर के आते हैं कभी कभी। इतना दूर जाते हैं? हाँ पुलिस क्वार्टर से। फिर उस दिन काम पर नहीं जाते? नहीं बेटा हम लोग बड़े परेशान है पानी के लिए। पानी के लिए करोगे अब आपके पूरे इलाके के आपके जो है ना आप आए हैं ना सबके लिए दुआ मांगेंगे मस्जिद में भी। ऐसा करो आप। बिल्कुल यकीनन शहरी यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं और इस बात की शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उससे भी महरूम है। गैस हो, पानी हो या बिजली हो, यहाँ से निकल के शहर जाते हैं और गदा गाड़ी पर या दूसरी चीज़ों पर जो है वो पानी भर कर लाते हैं। बाज़ औक़ात वक्त ऐसा भी आ जाता है कि चंदा जमा करके जो है वो टैंकर्स यहाँ पर डलवाने पड़ते हैं। इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि तर्जी बुनियादों पर जो है वो यहाँ पर पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जबकि पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत है, अगर उसे दीगर ममालिक में शुमार किया जाए तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो तीसरे नंबर पे आता है पानी की किल्लत में। लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर कराची के कितने इलाके ऐसे हैं कि पानी यहाँ पर बहुत से इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है, बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। इलाका मकीन काफ़ी परेशान हो गए हैं और शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि पानी की फ्राहमी रोज़ाना की बुनियाद पर यकीनी बनाई जाए। अक्सर बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। तब आपको बताएं कि इस्लामी जमीयत तलबा जामिया डाउ ओझा कैंपस की जानिब से हमास की इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के जश्न में यकजहती फ़लस्तीन रैली का एहतमाम किया गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में जो है यहाँ पर रैली निकाली गई है। तर्जुमान इस्लामी जमीयत तलबा डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए आज रैली का आप लोगों ने एहतमाम किया, क्या एक पैगाम दे रहे हैं? मुस्लिम उम्मा यकजा हो रही है, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रही है, क्या पैगाम था ये? अहम पॉइंट है वो ये है कि फ़लस्तीनियों से फ़लस्तीन का जो मसला है वो किसी अरब ममालिक का या अजम ममालिक का नहीं है, वो हमारे ईमान का मामला है। बैतुल मुक़द्दस से हमारा एक ईमानी ताल्लुक़ है, एक रूहानी ताल्लुक़ है, क्योंकि वो एक अंबिया की सरज़मीन है और वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई है। इस हवाले से हमारा जो उनसे ताल्लुक़ है वो ईमानी ताल्लुक़ है। और पिछले 75 सालों के अंदर जो इसराइली फ़लस्तीनियों को बेगुनाह शहीद किया गया है, कई ख़वातीन को जो है वो बेवा किया गया है, और इस वक्त हाल ये है कि मेडिकल सप्लाईज तक जो है वो फ़लस्तीनियों को जो है वो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक से उनको इसकी इसराइल के लिए उसकी जो है ना इमदादी जो कार्रवाइयाँ जिसमें इतनी किल्लत है एशियाज़ की, उसमें उनकी जो इमदादी कार्रवाई करें और उनके लिए जो है ना जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको दे। और ये चाहिए कि जो हमारे मुस्लिम ब्लॉक्स हैं वो बने और उनके लिए उनकी मदद करें, जो मतलब कि हमारे मुसलमानों पे और फ़लस्तीनों पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं वो लोग। जो फ़लस्तीन हमारे भाई बहन हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने हाथों में जो है इसराइल के झंडे भी उठाए हुए हैं, बैनर्स भी उठाए हुए हैं। तो ये इस बात का एक जो है वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है यकजा है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठा रही है और फ़लस्तीन के हक़ में जो है नारेबाजी कर रहे हैं, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर कानून और उमर सोमरू का महकमा इंसानी हकूक़ के दफ्तर का दौरा। उमर सोमरू 21 मुलाज़मीन की गैर हाज़िरी और कम तादाद होने पर बरहम, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ के वक्त पर दफ्तर ना होने पर बरस पड़े। मज़ीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सब सेक्रेटरीट समेत जो सूबे के दीगर सेक्रेटरीट हैं वहाँ पर आज जो निगरान सूबाई वज़ीर कानून इंसानी हुकूक व कानून बैरिस्टर उमर सोमरू ने अचानक महकमा इंसानी हुकूक का सेक्रेटरी जो वाकई किलिस्टन में है वहाँ पर अचानक से दौरा किया तो 21 मुलाजमीन गैर हाजिर दिखाई दिए, जिसकी तादाद पर जो है सख्त बरहमी का इज़हार किया। सूबाई वज़ीर ने जो है उस मौके पर 21 गैर हाजिर अफसरान व मुलाजमीन को शौकात नोटिस देने और तरफ़ रोकने का भी हुक्म दे दिया और सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक ने मुलाजमीन का हाजिर रजिस्टर भी तलब किया है। उस मौके पर मुलाजमीन की गैर हाजिरी के मौके पर उमर सोमरू ने दफ्तर मौजूद स्टाफ से भी मुकालमा किया। उस वक्त तक दफ्तर में हाजिर 100% जो हाजिरी न थी और
मुलाजमिन की हाजिरी की तादाद 9 बजे तक गैर हाजिर थे। इस वजह से जो है उस मौके पर उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी महकमे का भी दफ्तर मौजूद है, बाकी मुलाजमिन इस पर कैसे अमल दरामद करेंगे। उन्होंने सख्ती से पाबंद किया कि मुलाजमिन वक्त पर दफ्तर पहुंचे और अपना काम जो है फर्ज शनासी के साथ निभाएं। जी ठीक है आज़ाद नौरिया, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कमर कस ली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 12 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग अफसरान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को ओहदों से हटा दिया है। बात करेंगे, आज़ाद नौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, इस सवाल से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची जिला शर्की के 6 असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर बिल्डिंग अफसरान और बिल्डिंग इंजीनियर्स को ओहदों से हटा दिया गया है। इस हवाले से डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक कोड़ो के अहकामात के बाद में जिनको हटाया गया उनमें शहजाद रजा सियाल जो असिस्टेंट डायरेक्टर, इंजीनियर जहांगीर अली मंगी को भी ओहदे से हटा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर आगा इरफान अहमद खान, असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद इमरान अहमद रजी को भी ओहदे से हटा दिया गया है। सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरशाद अहमद रियाज, इसके अलावा सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर रजा हुसैन खुश को भी ओहदे से हटा दिया गया। जिला शर्की के 6 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को भी ओहदों से हटा दिया गया है। उनमें सैयद आबिद अली शाह, फैसला अब्दुल्ला, कलीम अहमद, इखलाक अहमद ओडो, मकबूल अहमद सुमरो और रियाज अहमद जाकरो शामिल हैं। हटा जाने वाले तमाम अफसरों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो है SBSC में रिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया गया है। इसके अलावा 3 अफसरान के तबादले कर दिए गए, जिसमें इंजीनियर अब्दुर्रहमान भट्टी को डायरेक्टर जनरल कंप्लेंट सेल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात किया गया है। इंजीनियर इशफाक हुसैन खोकर को डायरेक्टर पब्लिक सेल एडवर्टाइजमेंट तैनात कर दिया गया, जबकि इंजीनियर अली असद को रीजनल डायरेक्टर सक्कर तैनात कर दिया गया। जबकि इंजीनियर असद अली के पास पहले से रीजनल डायरेक्टर SPCA लाड़काना का भी चार्ज उनके पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इस वजह से 3 अलग अलग से हुक्म में DG SPCA की जानब से जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद। आजम बस्ती के रहायशी गैस की अदम फ्राहमी से परेशान है। इलाके में 2 साल से गैस गायब है। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी सबा। शहर कायद के बासी जो हैं वो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से जो है वो महरूम कर दिए गए हैं। गैस जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, अगर नहीं होगी तो किस तरह से वो गुजारा करेंगे, किस तरह से खाना बनाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़म बस्ती में, जो है वो यहाँ पर इलाका मकीन है। यहाँ पर गैस की इंतहाई बंदिश है। मेरे साथ इस वक्त ख़वातीन मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइए कि क्या दौरानिया है गैस लोड शेडिंग का या फिर गैस है ही नहीं? अस्सलाम वालेकुम। गैस की कोई टाइमिंग नहीं होती, किसी वक्त भी जो है ना गैस बंद होती है। और सुबह तो उठें तो चूल्हे जो हैं वो वैसे ही ठंडे पड़े होते हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे मैं भी अब बुज़ुर्गों में शामिल होती जा रही हूँ, तो शुगर के मरीज़ हैं, जब सुबह उठते हैं तो भूख प्यास लगी होती है, जैसे तो ब्रेड वगैरह लाते हैं और उससे जैसे गुजारा कभी पानी से खानी पड़ती है, ना दूध गर्म हो सकता है ना चाय पक सकती है। और मेरे घर तो तकरीबन 4.5 साल से मसला है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि क्या किस तरह से गुजारा करते हैं जब गैस फराहम ही नहीं की जा रही? यही सिलेंडर से ही गुजारा हो रहा है। सिलेंडर लेकर आए 4200 रुपये का, और जो है अभी मैं सुबह से नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो ये 1 बाय 1 हमने सिलेंडर पे चीज़ें बनाई हैं। अभी भी हमारा अधूरा ही है, नाश्ता भी हमने किया नहीं है। मेरे वालिद हैं 70 साल से ऊपर के, वो अभी भी माशाल्लाह से जॉब करते हैं। वो बेचारे बगैर नाश्ते के कभी जॉब पे जा रहे हैं, कभी ब्रेड खा के जा रहे हैं। बुज़ुर्ग हैं, उनको तो चाहिए, तो बस ये गुजारा कर रहे हैं। और हर हफ्ते हम लोग 600 रुपये की सिलेंडर भरवाते हैं, और जो है महीने के हमें 2400 रुपये ये पड़ता है, और बिल हम प्रॉपर भर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो हैं वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल में हैं। उनका अगर इस वक्त भी जो है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें वकास, तो ये सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिलेंडर, छोटे छोटे घर हैं और यहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी जानिब जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन दोपहर के औकात हैं और अभी तक इन्होंने जो है वो नाश्ता नहीं बना इनका, क्योंकि गैस जो है वो इन्हें फराहम नहीं की गई, गैस इनके पास मौजूद नहीं है। शहरियों का यही कहना है कि इन्होंने कई बार जो है वो वजह जानने की कोशिश की, लेकिन कोई वजह नहीं मालूम की जा सकी, जिस वजह से शहरियों ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत सिलेंडर इस्तेमाल किया या फिर लकड़ी जलाकर जो है वो ये अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि अब भूखे तो रह नहीं सकते इस शहर में। तो दूसरा यही कि उन्होंने जो है वो मुतालबात किए, लेकिन कोई सब अपनी मदद करते हैं। जी आपको बताएं, कराची में लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जिला मलीर से ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। मुराद मेमन सब डिवीजन में 17 अक्टूबर को ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट राजा तारिक के खत के बाद डिप्टी कमिश्नर से मंसूबा बंदी कर ली गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी हाँ, हम अपने नाजरीन को बताएं कि सिटी 21 ने 2 रोज का पहले ये खबर ब्रेक की थी कि कराची में बड़े पैमाने पे लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स को इसमें शामिल किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अब ये फैसला हो गया है। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट ने खत लिखा था कमिश्नर कराची को, जिसके बाद अब फैसला हो गया है कि जिला मलिर इस ऑपरेशन की इब्तदा की जाएगी। जिला मलिर के डिप्टी कमिश्नर ने पूरा शेड्यूल जारी किया है। 17 अक्टूबर से ये ऑपरेशन मुराद मेमन सब डिवीजन से शुरू किया जाएगा और 18 अक्टूबर को फिर यही ऑपरेशन बिन कासिम और इब्राहिम बदरी टाउन्स में होगा। 19 अक्टूबर को फिर गडाप और एयरपोर्ट टाउन में ये ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन में बताया गया है कि प्रॉपर्टी एक्ट के तहत 72 लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। हजारों एकड़ सरकारी इराजी पर जो कब्जे हैं वो खत्म करवाए जाएंगे और जो इमारतें तहरीर की गई हैं उनको मुनहदम किया जाएगा। तो ये तैयारी है, मंसूबाबंदी कर ली गई है। 17 अक्टूबर को ये ऑपरेशन शुरू होगा। आजिज, मंसूबाबंदी कर ली गई है, तैयारी कर ली गई है, तो किस तरह से टीम मेंबर क्रिएट किए जाएंगे? कितने लोग शामिल होंगे? कितनी टीमें होंगी? जी, जो हमें इसकी इतलात मिली है इसमें बड़े पैमाने पे बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी होंगे, जिसमें रेंजर्स है, जिसमें पुलिस है, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के अपने लोग होंगे, जिले इंतजामिया के लोग होंगे, उस इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर होगा, रेवेन्यू के अफसरान होंगे। तो हर इलाके में 50 से ज्यादा लोग तकरीबन होंगे जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। सरकारी मशीनरी होगी, जो है इमारतें मुनहदम कराने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। काफी बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। पुलिस लापता अफराद का सुराग लगाने में नाकाम। अदालत का पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी भी सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज्यादा लापता अफराद हैं जिनकी बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है पुलिस की कारकर्दगी पर। लांढी टाउन के चेयरमैन जमील खान का कहना है कि बल्दियाती बजट तो आ चुका है मगर मुलाजमीन की तनख्वाह का मसला अहम है। कोशिश है मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ साथ टाउन में मौजूद दीगर मसाइल का हल भी कफायत शारी के साथ निकाले। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात भी हो चुके हैं, बल्दियाती निज़ाम भी आ चुका है और बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मिलने के बाद अब जो बजटिंग का सिलसिला है वो भी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ टाउन चेयरमैन लांडी मौजूद हैं, जमील खान साहब, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या आदाद शुमार है और लांडी में क्या बजट आया है, क्या बजटिंग की तकसीम आपने की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर बात की है। देखिए, हमने बजट काउंसिल में पेश किया और अप्रूव हुआ है। उसमें जो आमदन, तो आपको पता है कि जो गज़ेटी आता है सैलरीज की मद में, एक तो वो आता है, बाकी चीज़ें उसमें ऐसी कोई नहीं है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पहले ज़माने में नेमत साहब के ज़माने में वो हमें हिस्सा मिलता था, वफाकी गवर्नमेंट से सूबाई गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट से टाउन्स को मिलता था, वो नहीं है। और अब वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप ऑन सोर्स जो कुछ आपके वसाइल हैं उन्हीं से आप रिकवरी करें। तो बहरहाल हमने बड़ा सर जोड़ के जो 2-3 हमारे, क्योंकि देखिए हमारा टाउन जो है इसमें कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, इसमें बड़े प्लॉट्स नहीं है, इसमें होटलिंग नहीं है, इसमें होर्डिंग्स नहीं है, मतलब चीज़ें ऐसी नहीं जो बहुत ज़्यादा हो। हमने बहुत सोच समझ के बहरहाल जो हमारा बजट बना है वो 2 अरब रुपए का बना है, जिसमें 1 अरब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बजट है। हाँ, एक पिछले गुज़िश्ता दिनों जो है खबर सुनने में आई थी, वो ये कि बल्दियाती नुमाइंदों को बजट अलॉट हो गया, तमाम तर इख्तियारात हो गए, लेकिन उनकी अपनी सैलरी, उनकी अपनी आमदन जो है वो अब तक बहाल नहीं हुई है। तो क्या इसमें सदाकत है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे दिल की बात कही है। देखिए, हम तो यार कनात पसंद लोग हैं, अब खुद से कहते भी नहीं है, ना किसी से पूछते, ना यूसी चेयरमैन की, ना काउंसलर्स की, टाउन चेयरमैन, उसका काउंसलर्स, उसके वाइस चेयरमैन, काउंसिल, किसी की कोई किसी किस्म का एजाज या सैलरी तो ये कहते नहीं है। वैसे हमें कहते हैं कि जी आप 19 ग्रेड के इक्वल हैं, अब 19 ग्रेड की जो फैसिलिटी वो दे दें,
तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी किस्म का। 3 महीने हो गए तो लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं बेचारे। तो आपको पता है कि इस वक्त बड़ी महंगाई है, पेट्रोल बहुत महंगा है, लोगों का आना जाना मुश्किल, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जी बिल्कुल, जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो इस बात पे निगाह डाल रहे थे कि बजटिंग का जो सिलसिला है वो लांडी में मुकम्मल कर लिया गया है। लांडी की आवाम को जो है तोहफे भी दिए जाएंगे उनके दौर में, और साथ ही इस बात पे भी जो है वो उन्होंने बात की कि जो टाउन चेयरमैन है या फिर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो खुद जो है वो उनको सैलरी नहीं। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। हुकूमती इकदामात और सख्ती से इंटरबैंक और ओपन मार्केट का बड़ा फ़र्क ख़त्म होने पर तरसीलात ज़र में बेहतरी हुई है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए हुकूमती इकदामात के असरात नज़र आ रहे हैं कि इंटरबैंक ओपन मार्केट का फ़र्क ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद तरसीलात ज़र देखा जाए जो पिछले माह के मुकाबले सितंबर में 11 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह क्या हुई जानते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के माहिर अदनान प्राची हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर? हम तो देख रहे थे 30-40 करोड़ डॉलर का इजाफा होगा, लेकिन ये तो बहुत कम हुआ है। जी देखें, ये जो इम्पैक्ट आया है आपका, थोड़ा सा जो इंक्रीज़ आया है, ये जो हुकूमती इकदाम हुए हैं हुंडी हवाले के अगेंस्ट जो हुआ है, आपने देखा है कि गल्फ़ स्टेट से हमारी जो रेमिटेंसेज है उसमें इजाफा हुआ है, और यूरोपियन साइड में और EU वाली साइड से हमारे जो रेमिटेंसेज है उसमें थोड़ी सी कमी स्लाइटली देखने में आई है। इस मौके पे मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें 2-3 इकदाम जो इस टाइम पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना टारगेट अचीव करना है जो कि 32 से 33 अरब डॉलर का है। उसके लिए हमें हर महीने तकरीबन 3.25 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस को लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और अपने वफाकी इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो हमें रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए हमें कोई स्कीम्स निकालनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ऐसी स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स लाने चाहिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्पेशली, ताकि हमारा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ और उन स्टेट्स की तरफ उधर रहता है वो यहाँ पे माइल हो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करे। दूसरी चीज़, हमें अपनी वर्क फोर्स को जो हमारी गल्फ़ स्टेट्स के लिए जा रही हैं, वो जो हमारी हुनरमंद नहीं है, उनको हमें यहाँ पे हुनरमंद करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो स्किल्ड हैं उसको हाईली स्किल्ड की तरफ भेजें, और जो हाईली स्किल्ड हैं उनको हम प्रोफेशनल लोगों को, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स को भेजेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों में रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा, और जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे रेमिटेंसेस की सूरत में उसमें भी इजाफा देखने में आएगा। साहब देखा जाए पिछले साल यानी कि फिस्कल ईयर 22 में देखा जाए 8,35,000 जो हैं बैरून मुल्क गए थे नौकरी के लिए। इस दफ़ा भी देखा जा रहा है इतने ही जाएंगे, 8.5-9 लाख के करीब, लेकिन इतनी बड़ी तादाद जाने के बावजूद भी वहाँ से पैसे नहीं आ रहे। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, उसकी वजूहत आपके सामने है, क्योंकि पहले जो है इंटर बैंक और ओपन मार्केट का गैप बहुत ज़्यादा था। अब वो गैप हमारे अदारों की वजह से वो गैप अब ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा वक्त लगेगा एतमाद बहाल होने में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि हम इसको शॉर्ट टर्म नहीं, हमने इसको लॉन्ग टर्म प्लान्स लेकर चलना है। अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये क्रैकडाउन जारी रहेंगे और ये इम्प्लीमेंटेशन रहेंगी पॉलिसीज़ की, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों के अंदर रेमिटेंसेज में बेहतरी आने का इम्कान है। जी, जैसा कि आपने सुना, हुकूमती इकदामात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। जो क्रैकडाउन हो रहा है हुकूमती इकदामात की वजह से इंटर बैंक ओपन मार्केट का फ़र्क ख़त्म हो गया, तो आगे चल के तरसीलात ज़र में मज़ीद बेहतरी होगी, साथ ही सरमायाकारी भी बढ़ेगी। जी, कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के मौसम के हवाले से। कुछ बात करें तो आज का मौसम कैसा चल रहा है, जानने के लिए बात करेंगे आयशा आफरीन से। जी आयशा। जी, कराची में पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी सूरज उसी तरह आग बरसा रहा है और शहरी परेशान है कि कब वो इस गर्मी से निजात पाएंगे। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया उसके मुताबिक आज जो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत आज 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने की उम्मीद है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बताई गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 78% है, जिसकी वजह से कराची के अंदर ज़्यादा गर्मी और हब्स की कैफियत महसूस की जा रही है। और क्योंकि कराची में आलूदगी बहुत ज़्यादा है और आज भी कराची में जो आलूदा तरीन शहरों में कराची आज 27वें नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि 16 से 21 अक्टूबर के दरमियान एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो दाखिल होगा, बलूचिस्तान में दाखिल होगा ईरान के रास्ते, जिसकी वजह से जो बालाई सिंध और वस्ती सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का इम्कान है। जबकि कराची के अंदर भी ये बताया गया है कि उसकी वजह से असरअंदाज होंगी, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक और सिस्टम है हवाओं का, वो तकरीबन मौसम सरमा में यहाँ पर दाखिल होगा और उसके तहत इस बार मौसम सरमा में ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। जी,
आगे बढ़ते हैं। जोड़ों के दर्द की वजह क्या बनती है, इससे कैसे निजात हासिल की जाए। आर्थराइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बढ़ती उम्र में बढ़ती बीमारियां, जोड़ों के दर्द की परेशानी बनने लगी हर घर की कहानी। आर्थराइटिस का आलमी दिन। हर साल 12 अक्टूबर को दुनिया भर में आर्थराइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। इस मर्ज की अलामत और इलाज मुआवजे के लिए अवाम बिलखुसूस खवातीन में आगाही और शऊर को फरोग दिया जाता है। रियोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अहमद इकबाल मिर्जा का कहना है कि इस मर्ज से दुनिया भर में हर साल 35 से 36 मिलियन लोग मुतासिर होते हैं। ये बीमारी अमूमन 50 साल की उम्र के बाद लाहिक होती है। शुरुआत अमूमन 50 साल से बाद होती है और औरतों में इसकी 50 से 60 साल के बाद ये शुरू होती है, जिसमें चिकनाहट ख़त्म होना, घुटने में ग्रीस कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं उसको ख़त्म होना और इसकी वजह से चलने फिरने बैठने उठने में तकलीफ़ लोगों को होती है। ये बीमारी जोड़ों के साथ कुव्वत मुदाफ़त पर भी असरअंदाज होती है। हाथ, कलाई, घुटनों और पैरों की हड्डियों में सूजन दर्द का बाइस बनती है और बाज़ औक़ात उन्हें टेढ़ा भी कर देती है। माहिरीन का कहना है कि इसकी वजूहात में मोटापे का होना और इम्यून सिस्टम में तवाज़ुन ना होना है। अब ये जोड़ की सोजिश मुख्तलिफ असबाब की वजह से होती है। इसमें से कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी शामिल हैं जिसमें जोड़ों में सोजिश और वरम लाहक होता है। और इसके अलावा वो भी असबाब हैं जिसका मतलब जो ओबेसिटी, फरवापन की वजह से या कोई क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ये हमारे इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रहे होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र की वजह से, फरवापन की वजह से डेवलप हो रहे होते हैं उसमें। और इसके अलावा हड्डियों का भुरभुरापन जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इसकी बुनियादी वजह हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की बुनियादी कमी होती है। घुटनों और जोड़ों के मर्ज में मुब्तला हजारों मरीज दिन रात इस तकलीफ से गुजरते हैं। इसलिए अगर पहले ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली जाएं तो इस अजियतनाक दर्द से बचा जा सकता है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।